students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is computer viruses and their effects. In this chapter, we will learn virus, types of virus, program viruses, boot sector viruses, macro viruses, effect on computer system, removing a computer virus, prevent your computer, antivirus software, hackers and crackers. तो आपके कंप्यूटर में कभी कभी वायरसेस आ जाते हैं अलग अलग मोड से, तो वो वायरसेस आपके क्या होते हैं, किस तरीके से वो आपके कंप्यूटर पे इम्पैक्ट डालते हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. वायरस. वायरस इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स पॉइजन. A computer virus is an undesirable and unwanted program file or routine that can corrupt files, replicate itself, replicate other files, or in some other ways degrade or even shut down a computer system. Most viruses stay active in memory until the computer is turned off. However, the virus is only removed from volatile memory, that is random access memory, RAM, but not from file or disk it has infected. So the next time the computer is switched on, the virus program is activated again and attaches itself to more programs. Viruses begin to work and spread when you start up the program or application in which the virus is present. तो वायरस जो आपका वर्ड है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉइजन. कंप्यूटर का जो वायरस होता है ये अनडिजायरेबल अनवांटेड सब्सटेंस होता है जो आपकी कंप्यूटर की फाइल्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, रेप्लिकेट भी कर सकता है और फर्दर खुद को मल्टीप्लाई करते हुए आपके पूरे के पूरे सिस्टम को खराब कर सकता है. जैसे ही आप इसको टर्न ऑफ करते हैं ये सिर्फ आपकी जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, सिर्फ उसी से जाता है. जैसे ही आप इसको वापस कंप्यूटर को टर्न ऑन करेंगे ये वायरस वापस से अपना काम करना चालू कर देता है. आप कोई भी प्रोग्राम ओपन करेंगे उस जिसको इसने इन्फेक्ट कर रखा है उस पर ये रेप्लिकेट मल्टीप्लाई करते हुए आपकी फाइल्स को डैमेज करना शुरू कर देगा. एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस. सम वेल नोन वायरसेस आर KAK, I Love You, Nimda, Colonel, Ghost, Funlove, Pinfy, Redloff, Red Alert, Stoned, Polyboot and Melissa. These viruses cause harm to system because they occupy the space on your hard disk and waste your precious time. These are deadly viruses because they cause harm to your boot area of hard disk, vital components of the computer system and hardware devices attached to your system also. कुछ आपकी viruses के examples हैं CAC, I Love You, Nimda, Colonel, Ghost, Funlove, Pinfy, Redloff, Red Alert. ये सारे वायरसेस जो होते हैं ये आपके सिस्टम को खराब कर देते हैं, आपका जो हार्ड डिस्क होता है उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट करते हैं और ये इतने डेडली होते हैं कि आपके हार्ड डिस्क के बूट एरिया में होते हैं और आपकी फाइल को कंप्लीटली करप्ट और डैमेज करने के लिए फुल्ली केपेबल होते हैं. Know it. Virus stands for Vital Input Resource Under Seize. तो वायरस का फुल फॉर्म है Vital Input Resource Under Seize. Types of virus. On the basis of real life, viruses can be classified into 3 types. Number 1, time bomb. Second, Trojan horse. Number 3, worm. तो आपके जो वायरसेस होते हैं रियल लाइफ बेसिस पे 3 के कैटेगरीज में डिवाइडेड है, टाइम बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स और वर्म. The above 3 types of virus have their own characteristics which are described below. Number 1, time bomb. This type of virus affects your computer on certain times. This virus is very dangerous as the user cannot know the time of its attack on the computer. तो टाइम बॉम्ब जो होता है ये टाइप का वायरस आपका स्पेसिफिक टाइम पे अटैक कर सकता है कंप्यूटर को और ये इतना खतरनाक इसीलिए होता है क्योंकि यूजर को यूज करते हुए पता नहीं चलेगा कि किस पर्टिकुलर टाइम पे इसने आपके कंप्यूटर को अटैक कर लिया है, इन्फेक्ट कर लिया है. सेकेंड, ट्रोजन हॉर्स. This type of virus attaches itself to the programs. It starts corrupting data stored on the computer disk and while exchanging disks from one computer to another, it comes by contamination. Trojan horse, also known as Trojan, is a malware that appears to perform a desirable function but intact performs undisclosed malicious functions. A program named waterfall.scr is an example of Trojan horse.
It is a free waterfall screensaver, but when it runs, it unloads hidden programs, commands without the user's knowledge. Malicious Trojan horse programs are used to circumvent protection system to allow unauthorized access to the user's computer. Trojans are classified on the basis of how they breach and damage systems. The 5 main types of Trojan horses are remote access, data destruction, downloader, server Trojan, security software disabled. Some examples of damage by Trojans are overwriting data on a computer, reinstalling itself after being disabled, corrupting files, copying fake links which led to false websites, spreading other malware such as viruses, opening and closing CD-ROM tray, restarting the computer whenever infected, randomly shutting off the computer, slowing down your computer, making screenshots, logging keystrokes to steal information such as passwords and credit card numbers. फिर आपके Trojan horse आते हैं. ये जो होते हैं, जैसे ही आपके सिस्टम को अटैक करते हैं, आपके किसी एक प्रोग्राम के साथ ही अटैच हो जाते हैं. सपोज आपकी हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव के साथ. फिर जैसे ही आपके उस चीज़ के साथ अटैच हो जाते हैं, आप उसको एक कंप्यूटर से निकालते हैं, पेन ड्राइव को या हार्ड डिस्क को दूसरे कंप्यूटर में डालते हैं, तो ये कंटामिनेशन की तरह दूसरे कंप्यूटर में ये वायरस इंजेक्ट हो जाता है. ये कंटामिनेशन की तरह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है. जो आपके ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, इसे ट्रोजन भी कहा जाता है. ये एक मैलवेयर होता है जो कि दिखता है कि आपका कोई डिजायरेबल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बट ये आपके सिस्टम को बहुत ही मलिशियसली खराब कर देता है. आपका एक प्रोग्राम है जिसका नाम है waterfall.scr. ये एक टाइप का ट्रोजन हॉर्स है. आपका एक वाटरफॉल का स्क्रीन सेवर होगा. जैसे ही ये रन होना स्टार्ट होगा, आपकी जितनी भी फाइल्स होंगी वो करप्ट करना स्टार्ट कर देगा, हिडन फाइल्स को बाहर ले आएगा. आपके जो सिस्टम है उसको, जो आपकी अनइंस्टॉल्ड चीज़ें हैं उसको दोबारा रीइंस्टॉल कर देगा. आपका सिस्टम को अपने आप ही शट डाउन कर देगा, आपके सिस्टम को स्लो डाउन कर देगा. ये सारी मलिशियस एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी. आपके जो ट्रोजन्स हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ को आपके ये ब्रीच करते हैं, उन पे ये कैटेगराइज्ड हैं. आपकी जैसे कि रिमोट एक्सेस, डेटा डिस्ट्रक्शन, डाउनलोडर, सर्वर ट्रोजन, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डिसेबल. तो ये अलग अलग ट्रोजन्स हैं जो अलग अलग टाइप की एक्टिविटी करते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी जो ट्रोजन्स को डैमेज जब कर देते हैं आपकी कंप्यूटर को या सिस्टम को, तो आपकी ओवर राइटिंग डेटा हो जाता है. यानी कि एक डेटा कहीं भी एक जगह होगा, आपने उसको टाइप भी नहीं करा होगा, वो दोबारा कहीं और पे ओवरराइट होना स्टार्ट हो जाएगा. आपके जितने भी डिसेबल्ड करे हुए आपके एप्लीकेशंस होंगे वो दोबारा से रीइंस्टॉल हो जाएंगे. आपकी फाइल्स करप्ट हो जाएंगी, फेक लिंक्स कॉपी हो जाएंगे विच विल लीड टू समथिंग विच इज फॉल्स वेबसाइट्स. उसके अलावा आपकी मैलवेयर जो वायरसेस हैं वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे. ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जो CD-ROM ट्रे है वो अपने आप खुल जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी. आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपने आप कभी भी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा, रैंडमली शट डाउन हो जाएगा, कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाएगा, स्क्रीनशॉट्स अपने आप लेने लग जाएगा. यहाँ तक कि आपकी कुछ ऐसी लॉगिंग की स्ट्रोक्स होती हैं जो आपकी कंप्यूटर की पासवर्ड्स होते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स होती हैं, वो तक भी लीक कर देता है. तो ये जो वायरसेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं. Number 3, worm. A worm is similar to a virus by its design and is considered to be a subclass of a virus. Worm virus affects the computer by slowing down the operation speed of the computer. It only affects the processing but not the data. फिर आपका worm आता है. ये simply आपका वैसा किया हुआ डिजाइंड वायरस होता है. आपके डेटा को कुछ हार्म नहीं करता है, लेकिन आपकी प्रोग्रामिंग जो होती है उसको ये थोड़ा सा खराब कर देता है, प्रोसेसिंग को खराब कर देता है. आपका जो ऑपरेशन स्पीड होगी वो स्लो डाउन हो जाती है, तो आपकी डेटा को कोई हार्म ये नहीं करता है. प्रोग्राम वायरसेस. Program viruses infect program files which commonly have extensions such as .com, .exe, .sys, .dll, .ovl or .scr. These programs are loaded in memory during execution, taking the virus with them. तो कुछ आपकी प्रोग्राम वायरसेस होते हैं जो आपके प्रोग्राम फाइल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, which usually have extensions such as .com, .exe, .sys, .dll, .ovl, .scr. और ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये आपकी मेमोरी में तब लोड हो जाते हैं जिस टाइम पे एग्जीक्यूशन चालू होता है. ये वायरस उन्हीं के साथ आपके कंप्यूटर्स में इंसर्ट हो जाते हैं. बूट सेक्टर वायरसेस. दीज वायरसेस इन्फेक्ट फ्लॉपी डिस्क, बूट रिकॉर्ड्स और मास्टर बूट रिकॉर्ड्स इन हार्ड डिस्क्स. They replace the boot record program which is responsible for loading the operating system in memory.
copying it elsewhere on the disk or overwriting it. Boot viruses load into memory if the computer tries to read the disk while it is booting. Examples: disk killer, Michelangelo, स्टोन वायरस। तो आपके कुछ ऐसे बूट सेक्टर वायरसेस होते हैं जो आपकी फ्लॉपी डिस्क, बूट रिकॉर्ड्स, मास्टर बूट रिकॉर्ड्स जो आपके हार्ड डिस्क के प्रेजेंट होते हैं सीधे उन पे अटैक करते हैं। आपके जो बूट रिकॉर्ड प्रोग्राम्स होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनेजमेंट के लिए, उसी को हटा देंगे, ओवरराइटिंग कर देंगे। या फिर आपके जो बूट वायरसेस होते हैं जब ये मेमोरी में लोड हो रहे होते हैं तो जब कंप्यूटर ट्राई करता है रीड करने के लिए डिस्क में तो उस टाइम पे बूटिंग हो जाती है। जैसे कि आपके एग्जांपल्स हैं डिस्क किलर, मिशेलैंगलो, स्टोन वायरस, ये सारे आपके बूट सेक्टर वायरसेस हैं। Macroviruses. A macrovirus infects the macros within a document or template. When you open a word processing or spreadsheet document, the macrovirus is activated and it infects the template, a general purpose file that stores default document formatting settings. Since the virus attaches itself to documents, the infection can spread if such documents are opened on other computers. Examples: DMV, Nuclear, वर्ड कॉन्सेप्ट। फिर आपके मैक्रो वायरसेस आते हैं। जो मैक्रो वायरसेस होते हैं ये आपके डॉक्यूमेंट्स या टेम्पलेट्स के साथ अटैच होते हैं। जैसे ही आप वर्ड प्रोसेसिंग या स्प्रेडशीट में मैक्रो वायरस एक्टिवेट हो जाता है, इन्फेक्ट कर देता है टेम्पलेट को, जनरल पर्पस जो फाइल का होता है वो बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाता है, फॉर्मेटिंग सेटिंग चेंज हो जाती है। ये डॉक्यूमेंट जैसे ही आपका किसी और कंप्यूटर में आप सेंड करेंगे जिसमें आपका वायरस अटैच्ड है, किसी और कंप्यूटर में भी अगर यही सेम आपका डॉक्यूमेंट खुलता है तो ये वायरस उस कंप्यूटर को भी हैक कर देता है। जैसे कि आपका डीएमवी, न्यूक्लियर, वर्ड कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे आपके मैक्रो वायरसेस हैं। Effect on computer system. If you suspect that your computer is infected with a computer virus, the following are primary indicators that a computer may be infected. The computer runs slower than usual, the computer stops responding, or it locks up frequently. The computer crashes and then it restarts every few minutes. Applications on the computer do not work correctly. Disks or disk drives are inaccessible. You cannot print items correctly. You use unusual error messages. You see distorted menus and dialog boxes. There is a double extension on an attachment that you recently opened. An antivirus program disabled for no reason. An antivirus program cannot be installed or it will not run. Strange sounds or music plays from the speakers unexpectedly. A program disappears from the computer even though you did not intentionally remove the program. However, these are common signs of infection and may also be caused by hardware or software problems that have nothing to do with the computer virus. Unless you run the Microsoft malicious software removal tool or an up-to-date antivirus software on your computer, you cannot be certain whether a computer is infected with a computer virus or not. तो अगर आपके कंप्यूटर में किसी भी टाइप के वायरस ने इन्फेक्ट कर रखा है या अटैक कर रखा है तो उसके कुछ आपको सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे। जैसे कि आपका कंप्यूटर यूजुअल से धीरे काम करेगा, आपका कंप्यूटर अचानक से रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा या फ्रीक्वेंटली लॉक ऑफ होता रहेगा, आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा, एवरी फ्यू मिनट्स में वापस रीस्टार्ट हो जाएगा, एप्लीकेशंस जो है आपके कंप्यूटर में वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे, आपकी जो डिस्क या डिस्क ड्राइव्स है वो इनएक्सेसिबल हो जाएंगी, आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप प्रिंट नहीं कर पाएंगे आइटम्स करेक्टली, आप ऐसी एरर मैसेजेस देखेंगे जो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है, डिस्टॉर्टेड फाइल मेन्यूज या डायलॉग बॉक्सेस आपको दिखाई देने लग जाएंगे, आपके जो अटैचमेंट आपने रिसेंटली ओपन करे हैं उसमें डबल एक्सटेंशन आ जाएंगे, एंटीवायरस प्रोग्राम डिसेबल हो जाएगा विदाउट एनी रीज़न। उसके बाद आपके जितने भी एंटीवायरस प्रोग्राम है वो या तो इंस्टॉल ही नहीं होंगे और इंस्टॉल्ड होंगे तो चलेंगे नहीं। इसके बाद आपका जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के स्पीकर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लग जाएंगी, जो आपने म्यूज़िक प्ले ही नहीं करा है वैसी आवाज़ें आपको आने लग जाएंगी, आपका जो प्रोग्राम है वो अचानक से काम करते करते बीच में ही गायब हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी वायरस होने के सिम्टम्स दिखा सकती है, लेकिन नॉट ऑलवेज। कभी कभी ये आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो जब तक आपने कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट मैलिशियस सॉफ्टवेयर को नहीं रन करा है और उसने डिटेक्ट नहीं कर लिया है कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है, तब तक आप शॉर्ट नहीं हो सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में ये सारी प्रॉब्लम्स वायरस की वजह से हैं। रिमूविंग अ कंप्यूटर वायरस।
Even for an expert, removing a computer virus can be a difficult task without the help of computer virus removal tools. Some computer viruses and other unwanted software reinstall themselves after the viruses have been detected and removed. By updating the computer and by using antivirus tools, you can remove unwanted software permanently. To remove a computer virus, what you need is A. Install latest antivirus software. B. Update the antivirus software on the computer. Then perform a complete scan of the computer by using the antivirus tools. आपको कंप्यूटर में अगर कोई वायरस है तो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा सबसे पहले। तो जैसे ही आप ये रिमूव कर लेंगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, तो विदाउट द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वायरस रिमूवल टूल्स आप इसको यूजुअली नहीं कर पाएंगे, या तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपर्ट है वो ही इसको कर पाएगा। जैसे ही आप इन वायरसेस से ये अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स को रीइंस्टॉल कर देंगे या हटा देंगे, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपके वायरसेस आपके कंप्यूटर से हट जाएंगे, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर सही तरीके से काम करना शुरू कर देगा। तो आपके कंप्यूटर से अगर आपको वायरस रिमूव करना है, उसके आपके दो तरीके हैं। सबसे पहला, या तो आप कोई लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपका जो कंप्यूटर है उसमें कोई भी वायरस अटैक कर ही ना पाए, या दूसरा है अपडेट करिए अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर पे और परफॉर्म अ कंप्लीट स्कैन। अच्छे से स्कैन कर लीजिए, जिसमें आपका स्कैन करने के बाद आपको बताता रहेगा कि आपके कंप्यूटर में वायरस है या फिर नहीं है। प्रिवेंट योर कंप्यूटर। टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर, व्हाट यू नीड इज A. Keep your firewall on. A firewall helps to protect your computer from hackers who might try to delete informations, crash your computer, or even steal your passwords or credit card numbers. Make sure your firewall is always turned on. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर इन वायरसेस से प्रोटेक्टेड रहे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो फायरवॉल है उसे हमेशा ऑन रखना है, ताकि जो हैकर्स हैं जो हर टाइम इस ताक में है कि आपका फायरवॉल ऑफ हो, आपके कंप्यूटर पे अटैक किया जाए, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसमें आपके पासवर्ड्स, इंपॉर्टेंट क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, वो सारी चीज़ें उनका एक्सेस उनको मिल पाए। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी कंप्यूटर का जो फायरवॉल है वो हमेशा ऑन रहे। B. Keep your operating system up to date. High priority updates are critical to the security and reliability of your computer. They offer the latest protection against malicious online activities. उसके बाद आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हमेशा अप टू डेट रखिए, ताकि आपकी जितनी भी मलिशियस एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी हैक हो रहा है, वायरस इन्फेक्ट हो रहा है, अटैक कर रहा है, वो सारी चीजें आपकी कंप्यूटर में ना हो। C. Use updated antivirus software. Viruses and spywares are two kinds of usually malicious softwares that you need to protect your computer against. Antivirus technology helps to prevent viruses and you need to keep it regularly updated. आपके जितने भी एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि वो आप हमेशा टाइम टू टाइम उसे अपडेट करते रह रहे हैं, ताकि जितने भी नए नए टाइप के वायरसेस आ रहे हैं उनके साथ वो कंपैटिबल हो और किसी भी टाइप के वायरस को ये आपके कंप्यूटर में एंटर करने ही ना दे। D. Use updated anti-spyware technology. Anti-spyware will help you to prevent spyware and you need to keep it regularly updated. जो आपकी एंटी-स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी होती है, ये आपकी बेसिकली स्पाईवेयर की तरह काम करती है, ध्यान देती है कि आपके कंप्यूटर में जितनी भी नई आइटम्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आप इंस्टॉल कर रहे हैं, जिस वेबसाइट पे आप जा रहे हैं, जिस लिंक को आप क्लिक कर रहे हैं, उसमें कोई वायरस है या फिर नहीं है। एंड जस्ट लाइक योर वायरस सॉफ्टवेयर, आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो एंटी स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी है वो भी अपडेटेड है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. Antivirus software is a program that searches the hard disk and floppy disk for any known viruses. There are so many antivirus utilities available in the market which are not only remove virus from the disk but also repair the corrupted disk. Some of them contain memory resident program which work as a protection for the computer and do not allow any virus infected disk to run. तो आपके फिर आते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये प्रोग्राम होता है जो आपके हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में सर्च करता है, अगर कोई नोन वायरसेस होता है तो सर्च करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। इसके बहुत सारे एंटीवायरस की यूटिलिटीज अवेलेबल होते हैं मार्केट में,
जो ना केवल आपके वायरस को आइडेंटिफाई करके रिमूव करते हैं, बल्कि जो आपकी इन्फेक्टेड करप्टेड डिस्क होती है उसको रिपेयर यानी कि ठीक भी कर देते हैं। और कभी कभी तो इसके मेमोरी रेजिस्टेंट प्रोग्राम होते हैं, सेम टाइप का वायरस अगर आपके उसी प्रोग्राम में आ रहा होता है तो ये उसको पहले ही आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव कर देता है। द मोस्ट पॉपुलर एंटीवायरसेस आर Norton System Works, Norton Internet Security, Smart Dog, PC-Cillin, Dr. Solomon, McAfee, AVG, Quick Heal, UAV, eScan, Fire, Inoculate। तो आपके कुछ बहुत ही पॉपुलर मोस्टली यूज्ड आपके एंटीवायरसेस हैं नॉर्टन सिस्टम वर्क्स, नॉर्टन इंटरनेट सिक्योरिटी, स्मार्ट डॉग, PC-Cillin, डॉक्टर सोलोमन, मैकेफी, एवीजी, क्विक हील, यूएवी, ई-स्कैन, फायर, इनोकुलेट। तो इनमें से आप कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। यूजिंग एंटीवायरस किट, click on the start button at the taskbar. In your programs menu, you will find antivirus kit. Select the antivirus kit you want to use to remove the virus or scan the system. When the antivirus kit runs, then it asks you to select the drives. Always choose the hard disk first. Now, click on the option of scan and clean. This process will take about 20 to 30 minutes. In some antivirus kits, they give the option of scan and clean the virus. If you click on this option, the antivirus program will detect the virus and remove it. Some of the common antivirus kit are McAfee, Norton, Quick Heal, PC-Cillin, AVG, eScan, Fire, etc. Some virus cannot be removed, but these viruses can be quarantined, moved to a specific folder from where it can't harm the computer. This means that these files will continue to have virus, but computer will not use it. The antivirus program will quarantine these files if you choose the quarantine in case of Norton antiviruses, Virus Vault in case of AVG, etc. option. Some old antiviruses are unable to detect the quarantined files. For this purpose, you should always use the latest antivirus software and upgrade its virus definitions weekly with the help of internet. If virus spreads in your computer's boot sector and many other files, then in this case you have to format your hard disk. After removing virus, always scan your hard disks and CDs. If you want to protect your computer from viruses, you must use a good quality latest antivirus kit and perform a full system scan ऑलमोस्ट डेली। एंटीवायरस किट होती हैं, इनको जब आप यूज करते हैं ये आपके बेसिकली टास्क बार पे जो स्टार्ट बटन होता है वहां पर आप इसको ढूंढ सकते हैं। जैसे ही ये जो आपके एंटीवायरस किट होती हैं ये आपके अलग अलग एरियाज से, अलग अलग ड्राइव से बेसिकली आपके जो वायरसेस होते हैं उनको स्कैन करती है। जैसे ही आपका एंटीवायरस रन करना स्टार्ट कर देता है, परफॉर्मेंस अपनी स्टार्ट कर देता है, ये आपको अपनी कोई ड्राइव चूज करने के लिए बोलता है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई वायरस है या फिर नहीं है। तो जैसे ही आप इस पर आपका स्कैनिंग का ऑप्शन आता है, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आपकी ड्राइव को स्कैन करना शुरू कर देगा और आपको बताता रहेगा कि आपके इस ड्राइव में वायरस है या फिर नहीं है। स्टॉप पे क्लिक करते ही ये स्टॉप कर देगा। ये प्रोसेस ऑलमोस्ट अराउंड 20 से 30 मिनट लेता है और आपका ये प्रोसेस इतनी देर तक चलता है। जो आपके कुछ एंटीवायरस होते हैं उसमें ऑप्शंस होते हैं स्कैन करने के और वायरस को क्लीन करने के लिए। इफ यू क्लिक ऑन दिस वायरस, ये जो एंटीवायरस प्रोग्राम है ये स्कैन करेगा, आइडेंटिफाई करेगा वायरस को और उस वायरस को हटा भी देगा। जैसे कि आपके एंटीवायरस किट हो गए मैकेफ्री, नॉर्टन, क्विक हील, PC-Cillin, AVG, ये सारे आपके एंटीवायरस किट हैं जो वायरस को आइडेंटिफाई भी करते हैं और क्लीन भी कर देते हैं। फिर आपके कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो आप रिमूव तो नहीं कर सकते हैं लेकिन क्वारंटाइन कर सकते हैं। क्वारंटाइन का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए छुपा सकते हैं कंप्यूटर्स के उन लोकेशंस पे जहां से ये आपके कंप्यूटर को हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। तो आपके जैसे कि आपके नॉर्टन एंटीवायरस की जगह अगर आप क्वारंटाइन ऑप्शन को चूज करेंगे तो वो वायरस आपका कंप्यूटर के उस जगह पे चला जाएगा जहां से आपके कंप्यूटर को ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये जितने भी आपके एंटीवायरसेस होते हैं ये आपके इंटरनेट की मदद से आपकी सारी चीज़ें स्कैन करती हैं और वीकली बेसिस पे या ऑलमोस्ट डेली ही मैं तो कह रही हूँ कि आपको आपके कंप्यूटर्स पे ऐसे स्कैनिंग करना ही चाहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है या फिर नहीं है। Hackers and crackers. Computer viruses are created by programmers who want to show off their programming skills. They are people who like to break into computer systems or networks. There are two different types of people who write computer virus programs, hackers and crackers.
Hackers refers to the people who use their skills to enter into computer systems without permission. Hackers are computer enthusiasts who break into secure systems to gain knowledge about them and possibly use this knowledge to play pranks. Crackers is a malicious programmer who gains unauthorized access to computer systems for the purpose of stealing, altering, or corrupting information. They often destroy the confidential or crucial data of the systems they invade. They break the security on application software and create destructive programs like viruses. तो आपके जो हैकर्स और क्रैकर्स होते हैं बेसिकली ये कंप्यूटर के वो वायरसेस आपके क्रिएट करवाए जाते हैं प्रोग्रामर्स के थ्रू जो आपके कंप्यूटर्स में अनऑथराइज्ड एक्सेस ग्रांट कर चुके होते हैं. दो टाइप के होते हैं, हैकर्स एंड क्रैकर्स. जो हैकर्स होते हैं यूजुअली अपने स्किल्स का यूज करते हुए दूसरे कंप्यूटर्स में आपकी अलग अलग साइट्स को हैक कर लेते हैं, नॉलेज गेन करते हैं और यूजुअली उस नॉलेज से प्रैंक्स वगैरह मजाक मस्ती के वे में कुछ भी चीज़ें करते हैं. बट क्रैकर्स जो होते हैं मलिशियस प्रोग्रामर्स होते हैं जो अनऑथराइज एक्सेस लेते हैं आपके कंप्यूटर का और इंपॉर्टेंट डिटेल्स चोरी करने के मेथड से, ऑल्टर या फिर आपकी इंफॉर्मेशन करप्ट, मतलब इन शॉर्ट बेकार इलीगल काम को जिनको एक्सेस करना होता है वो आपके क्रैकर्स होते हैं. To revise, a computer virus is an undesirable and unwanted program file that can corrupt files and replicate itself. The three main types of viruses are 1. Time bomb, 2nd. Trojan horse, number 3. Worm. Program virus infects program files. Boot sector virus infects boot sector records in hard disks. Macro virus infects the macros within a document. A worm is similar to a virus by its design and is considered to be a subclass of a virus. Trojan horse is a malware that appears to perform a desirable function but in fact performs undisclosed malicious functions. Antivirus, anti-spyware softwares, firewalls are helpful and must be kept up to date. आपके कंप्यूटर वायरस वो अनडिजायरेबल अनवांटेड क्रीचर्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर में नहीं चाहिए होते हैं. 3 टाइप के होते हैं, टाइम बॉम्ब, टॉर्जन और वर्म. अलग अलग लोकेशंस को ही आपके करप्ट कर देते हैं, आपके सिस्टम को ख़राब करने के लिए पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हैकर्स और क्रैकर्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर का एक्सेस लेके आपकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन को स्टील चोरी कर सकते हैं, आपकी फाइल को करप्ट कर सकते हैं, चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके चेंज कर सकते हैं. इससे बचने के लिए आपको एक स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी या फिर आपका स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होना चाहिए या फिर कोई एक ऐसा एंटीवायरस होना चाहिए जिसको आप टाइम टू टाइम अप टू डेट करते रहें जो आपके कंप्यूटर को अलग अलग वायरसेस से बचा के रखेगा. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको खुद से करनी है.